डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पोरफायरिडिन सेल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आज हम रोडोफाइसी में प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. The cytoplasm is located in the peripheral portion due to the large central vacuole. The cytoplasm contains cell organelles, a single stellate or axial or several discoid and parietal chromatophores. Each chromatophore is a double-layered fluid-filled bag containing the matrix called stroma, which contain photosynthetic lamellae containing photosynthetic pigment, chlorophyll A, chlorophyll D, alpha and beta carotene. इसके अलावा ब्लू फाइकोसाइनिन एंड येलो फाइकोसाइनिन तथा रेड पिगमेंट रेड फाइकोइरिथ्रिन मीन्स फाइकोबिलिन्स, लुटीन, वाइलोजैंथीन, जियाजैंथीन एंड फ्लेवोजैंथीन भी इसमें पाए जाते हैं. The red color of the algae is due to the predominance of the red pigment. This pigment is called as phycoerythrin and phycocyanin. Despite their name, not all rhodophysi are red. Some of them have very little phycoerythrin and appear green or bluish in color. कहने का तात्पर्य है, क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल में ल्यूटीन, जियाजैंथीन, नियोजैंथीन, वाइलोजैंथीन आदि पाए जाते हैं तथा बाइलोप्रोटीन में आर फाइकोरिथ्रिन तथा आर फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट उपस्थित होते हैं. इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स पर पायरिनाइड्स उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल और न्यूक्लियस किस प्रकार से होता है? रिजर्व फूड मटेरियल इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडोसाइट्स तथा गैलेक्टोसाइट्स के रूप में पाया जाता है. The one or multinucleate stage found in Griffiths and Griffithsia में 3000 to 4000 न्यूक्लियाई पर सेल पाए जाते हैं. इसके अलावा इनमें पिट कनेक्शन पाए जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, मल्टीसेलुलर एल्गिस की कोशिकाओं के मध्य सेप्टा पाए जाते हैं जो कि पिट कनेक्शन या प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं. इसके अलावा इस क्लास का एक और कैरेक्टर है, इनमें फ्लैजिला का पूरी तरह से अभाव होता है, यानी कि फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होती हैं. रोडोफाइसी में रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हैं. नंबर 1 वेजिटेटिव, नंबर 2
asexual, and number 3 sexual. The vegetative reproduction or vegetative propagation is common among unicellular forms, simple fission और सेल डिवीजन के द्वारा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. फॉर एग्जांपल पोरफायरिडियम. इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेलुलर फॉर्म, यानी कि मल्टीसेलुलर फॉर्म में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. मोनोस्पोर्स is large 4-nucleate aplanospores. It produced singly in a monosporangium. For example, Botrichospermum and Compsognathus. Asexual reproduction by neutral spores. The neutral spores is non-motile asexual spores which is produced by the direct transformation of vegetative cell. For example, बेंजिया. इसी तरह से कार्पोस्पोर्स के द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. द कार्पोस्पोर्स इज राउंडेड, uninucleate and non-motile asexual spores formed from the direct or indirect division of the zygote. For example, Polysiphonia. And next is asexual spores, tetraspores. The tetraspores is uninucleate and haploid spores which is formed in tetrasporangia by meiosis division. For example, Polysiphonia. जैसा कि आपने देखा, रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, कार्पोस्पोर्स आदि के द्वारा होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी. Oogamy type of sexual reproduction. The both male and the female gametes are non-motile. Male sex organs is called antheridium or spermatangium, which produce male gametes means spermatium. The female sex organs are called carpogonium, has a receptive hair-like trichogyne, and it forms female gametes means egg or ovum. Some species are monoecious and some species are dioecious. During fertilization, a spermatium is carried to the carpogonium by water current and get attached to the trichogyne. The point of contact dissolve, the spermatium nucleus pass down to the egg located in the base of carpogonium. उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और 2x जायगोट जो है वो बन जाता है. द 2x जायगोट गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाते हैं और इस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की टर्मिनल सेल्स जो है उससे मैच्योर कार्पोस्पोरेंजियम डेवलप होती हैं. द अनशेप्ड स्ट्रक्चर
consisting of carpogonium, gonioplast filament and carposporangia is called as cystocarp. The carposporophytes produce कार्पोस्पोर्स और कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनता है और टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट्स पर फिर टेट्रास्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम यानी कि स्पर्मेटेंजिया तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कार्पोगोनियम कहलाते हैं। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा होता है तथा अधिकांशतः जो मेंबर्स हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात परिवर्धन से कार्पोस्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है और उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट से फिर कार्पोस्पोर्स बनते हैं। कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करके टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाते हैं और टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट से फिर टेट्रास्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। रोडोफाइसी के अधिकांशतः जो सदस्य हैं उनमें डाइफेजिक और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल पाया जाता है जो कि आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। थैंक्स।